Afternoon, students. Good afternoon, students. Myself Saboni Dara. So today we will going to start with the accounting and office management, that is AOM paper 3, and the subject code is Y9. So as you know, this is Y9 paper 3 and it is a 12th standard. So first of all, I will going to congratulate to everyone for welcoming into HSC board exam of MCVC department. On the other hand, our subject name is Fundamentals of Costing and Auditing, and I'm going to take your theory subject. Alright, so now what I do is this: I will just going to introduce with this PDF textbook. This is your PDF textbook. Okay, this is an introduction part page. Then this is the committee of the book writers. Those are writers' name, those who have created the different types of chapters which is going to relate it in your life. Preface, as you know, each and every book has its own preface, and this is called index. So index, it includes hardly 8 chapters. Okay, very easy to understand, but it will be more easy if you will going to attend my lecture properly without fail. So that is why it is utmost important to attend my lecture compulsorily. Okay, and if you have missed any of the lectures, don't forget to go to my YouTube channel, that is Saboni Dhara, and over there you will going to find each and every day's recording lecture. But it is only going to applicable when your server, your network is not there. So compulsorily you all have to attend my lecture anyhow. Okay, so now today what we will do is this: today we will going to start with the contract costing, as this is our first chapter. ये first chapter है हम लोगों का. So इसको complete करेंगे, थोड़ा सा introduction करेंगे, complete तो नहीं हो सकता एक ही lecture में. So this is our first chapter which is called as contract costing. आपने ये नाम सुना ही रहेगा, that is contract. Contract का मतलब क्या होता है? Agreement between two peoples, right? So between two parties, those are called as what? Contract costing. Okay, costing का मतलब है वो cost क्या हो रहा है, contract का cost क्या बैठ रहा है. So यही सारी चीज़ें डिटेल्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं. So let's start. Introduction. Contract costing is a type of job costing. So it is nothing but it is a job costing in which a contract constitutes a unit of cost. The principles of job costing are applicable to contract costing and embrace the same basic principles of cost ascertainment. It is a kind of factory job costing but varies only in size. So contract costing हर एक ऑर्गेनाइजेशन में मिलेगा आप लोगों को बच्चों, बट ऑन दी अदर हैंड इसमें सिर्फ एक ही डिफरेंसेस रहता है कि साइज़. किसी किसी कंपनी का साइज़ बहुत बड़ा रहता है, किसी किसी का मीडियम साइज़ रहता है और किसी किसी का एकदम छोटा रहता है. इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट अ पान पट्टी का दुकान, ओके, जहाँ पे पान वाला बैठता है और सब चीज़ें देता है, तो उसका आपके पान पट्टी का नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आ जाता है? एक बहुत ही छोटा सा कैबिनेट आ जाता है जहाँ पे वो एक टेबल लगाता है, उसके ऊपर ही बैठता है, पान पत्ते वगैरह लगाता है. ओके, एंड वहाँ पे बहुत सारे आइटम्स रखते हैं, गुड्स रखते हैं, जाके वो सेल आउट हो. तो उसका भी वहाँ पे क्या रहता है? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग रहता है. यानी कि कॉस्टिंग बताता है वो अपने कंपनी का, वो अपने छोटे से बिजनेस का कि कितना कॉस्टिंग हुआ. वैसे ही इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट धीरूभाई अंबानी का रिलायंस कंपनी, इट इज़ अ वास्ट कंपनी. सो वास्ट कंपनी का मतलब है कि उनका भी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है, लेकिन बहुत बड़े में है, राइट. सो आज हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कि एक्चुअल में व्हाट डज इट मीन्स, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है. यहाँ पे एग्जांपल दिया है छोटे से, जैसे बिल्डर्स होते हैं, सिविल इंजीनियर्स होते हैं,
कंस्ट्रक्शनल्स एंड मैकेनिकल, ये इंजीनियरिंग फर्म्स होते हैं एक्सेट्रा, एडॉप्ट्स दिस मेथड ऑफ कॉस्टिंग। सो ये सारे मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग वो क्या करते हैं, एडप्ट करते हैं, ऑल्सो नोन एज टर्मिनल कॉस्टिंग। इसको क्या बोला जाता है, टर्मिनल कॉस्टिंग भी बोला जाता है। आइए देख लेते हैं कि मीनिंग का मतलब क्या है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज द ट्रैकिंग ऑफ कॉस्ट्स associated with a specific contract with a customer. For example, a company bids for a large constructions project with a prospective customer, and the two parties agrees in a contract for a certain type of reimbursement to the company. यानी कि ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट रहता है जिसमें दो एसोसिएट पीपल्स होते हैं। ओके, एक होता है कंपनी जो बिड्स देता है कि मेरा बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, और सामने वाला क्या करता है, इन्वेस्टमेंट देता है एक पर्टिकुलर एग्रीमेंट के साथ। अभी एग्रीमेंट का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट, अभी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है एग्रीमेंट। इसका मतलब क्या है, इसके अंदर बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस लिखे हुए रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप कहीं पे भी रहने के लिए जाते हैं रेंट में, तो आपको एक एग्रीमेंट करवाना पड़ता है बिटवीन यू द टेनेंट्स, यानी कि जो बढ़ोतरी है उनको टेनेंट्स बोलते हैं, और जो ओनर होते हैं, राइट, जिनका खुद का मालिक होते हैं, उन दोनों के बीच में ये एग्रीमेंट्स होते हैं कि ऐसा ऐसा डिपॉजिट है, ऐसा ऐसा मंथली रेंट जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी एंड मेंटेनेंस विल बी बोर्न बाय द टेनेंट्स। ये सारी चीज़ें लिखे हुए थे। तो ये लिखे हुए चीज़ें क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक एग्रीमेंट है जिसमें लॉफुल एग्रीमेंट है, राइट। सो यही बात यहाँ पे बताया जा रहा है। आइटम्स चार्ज टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, क्या क्या आइटम्स चार्ज होते कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में। ईच कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इज़ डेबिटेड विद द कॉस्ट ऑफ मटेरियल, मतलब मटेरियल, कोई भी चीज़ अगर आप बनाते हो, सोचो आपका प्लास्टिक का दुकान है या फैक्ट्री है, तो प्लास्टिक का फैक्ट्री बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको प्लास्टिक्स चाहिए, रॉ मटेरियल्स, राइट। सो दैट इज़ व्हाट कॉल्ड हियर रॉ मटेरियल्स। लेबर, उसको बनाने के लिए क्या आप खुद बैठ जाएंगे, नहीं, उसको बनाने के लिए आपको लेबर को अपॉइंट करना पड़ेगा। और मटेरियल लेबर को देने के लिए आपको क्या चाहिए, मटेरियल परचेस करने के लिए आपको पैसा चाहिए, लेबर को अपॉइंट करने के लिए आपको वेजेस देने पड़ेंगे। तो इन दोनों का मिलाकर एक्सपेंसेस, और साथ ही साथ में जहाँ पे आप करेंगे लैंड वगैरह, उसका भी तो रेंट आपको जुगाड़ करना पड़ेगा। सो दोज आर डायरेक्टली इनकर्ड फॉर द पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट एंड प्लस इट्स शेयर ऑफ द ओवरहेड्स। ओवरहेड्स का मतलब है एक्सपेंसेस। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, ओवरहेड्स का मतलब है एक्सपेंसेस। जो 11th स्टैंडर्ड में ध्यान नहीं दिए थे, तो जो ध्यान दिए हैं उनको तो समझ में आ जाएगा। ओवरहेड्स का मतलब क्या होता है यहाँ पे, एक्सपेंसेस। ओके, सो ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में फिट करके रखना पड़ेगा। सो दोज आर द थिंग्स जो डेबिट होता ही होता है, जो क्या होता है, डेबिट होना ही होना है। सो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि वाई दिस इज़ हैपनिंग, और किस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इम्पॉर्टेंटली काम करेंगे। सो नंबर फर्स्ट वन इज़ मटेरियल। जैसे कि मैंने आपको बताया मटेरियल का मतलब क्या होता है, और अच्छी तरह से देख लेते हैं। Contracts are generally carried out at site away from the head office of the contractor. So the material required for the contract may be issued from the stores or may be directly bought at the site. नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे मटेरियल्स तो रिक्वायरमेंट रहता ही है, तो उसको इशू स्टोर से किया जाता है, और नहीं तो वो डायरेक्टली साइट, यानी कि जहाँ पे हो रहा है काम, वहाँ पे दे दिया जाता है, खरीद के रखा जाता है। सो मटेरियल इशूड, बॉड, मटेरियल सप्लाइड बाय द कॉन्ट्रैक्टी, मटेरियल ट्रांसफर्ड फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट, मटेरियल रिटर्न टू स्टोर्स और सप्लायर्स, मटेरियल लॉस्ट और डिस्ट्रॉय, सेल ऑफ मटेरियल, मटेरियल एट साइट। ये सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें क्या होने वाले हैं, डेबिट होने वाले हैं।
तो ये देखिए, thus in effect finally the contract account is charged with the net cost of the material. ये सब 7 टर्म्स अगर हम लोग लेते हैं तो हम लोग को मिल जाता है नेट कॉस्ट ऑफ द मटेरियल्स विच इज यूज्ड बाय द फॉर द कॉन्ट्रैक्ट. द नेट कॉस्ट ऑफ द मटेरियल इज ascertained as shown in the following worksheet. ये छोटा सा वर्कशीट दिया है 5.1, दैट इज कॉस्ट ऑफ मटेरियल इन अ कॉन्ट्रैक्ट. टोटल कॉस्ट कितना लगेगा? सो इट इज़ वन काइंड ऑफ अ स्पेसिमेन यू कैन से. सो कॉस्ट ऑफ मटेरियल इशूड फ्रॉम द स्टोर्स और बॉट एट साइट, दैट इज XX आउटर कॉलम में. एड कॉस्ट ऑफ मटेरियल मतलब उसका क्या कॉस्ट है रिसीव फ्रॉम दी अनदर कॉन्ट्रैक्टर, दूसरे कॉन्ट्रैक्ट से, तो वो भी आउटर कॉलम में जाएगा. उसका अमाउंट लेस उसका जो भी टोटल है उसमें से लेस क्या होगा? कॉस्ट ऑफ मटेरियल ट्रांसफर टू अनदर कॉन्ट्रैक्ट, कॉस्ट ऑफ मटेरियल रिटर्न टू द स्टोर सप्लायर्स, यानी कि आपने क्या ट्रांसफ़र किए दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में, या आपने कुछ चीज़ें खरीदी लेकिन उतना यूज़ नहीं हुआ तो बोलकर आपने रिटर्न कर दिया फिर से सप्लायर को. कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स लॉस्ट और डिस्ट्रॉय, ख़राब हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, वॉट एवर. सो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी? लेस हो जाएगा. या कुछ मटेरियल आपने बेच दिया है तो वो लेस ही हो जाएगा, ऑब्वियसली आपके पास नहीं है तो लेस ही होगा. कॉस्ट ऑफ मटेरियल इन क्लोजिंग स्टॉक एट साइट, मतलब कितना बाकी रहा है. ये सब को ऐड करके आप ऊपर के आउटर कॉलम का जो टोटलिंग है उसमें से माइनस करेंगे तो आपको क्या पता चलेगा? आपको नेट कॉस्ट ऑफ मटेरियल डेबिटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट पता चलेगा. सो ये था आज का एक छोटा सा टॉपिक. आई होप यू ऑल गॉट इट. मैं लेबर चालू नहीं करूँगी अभी क्योंकि एक तो हम लोग ऑनलाइन सेशन में हैं और इसको समझना ही बहुत इम्पॉर्टेंट है. एंड ऑन दी अदर हैंड इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट यू जस्ट गो थ्रू इट with the same and ask me doubt tomorrow in the next lecture. Definitely I am going to help you out and I hope आप सबको समझ में आया है. Okay, so with that with this I just end up my lecture here. कल मिलते हैं with a new topic which is called as labor. लेबर का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है, प्लांट एट साइट, ये सारी चीज़ें हम लोग कल देखेंगे. क्योंकि एक साथ मैं नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि मटेरियल ही इतना बड़ा टॉपिक है, उसको थोड़ा सा विस्तार में समझाना बहुत ज़रूरी था. एंड आई होप आपने समझा रहेगा. आज का होमवर्क ये है कि आपको ये जो वर्कशीट दिया है टेबल, ये आपको ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक बार कॉपी करके लिखना है अपने नए से नोटबुक में. और आपको हेडिंग भी लिखना है वर्कशीट 5.1 कॉस्ट ऑफ मटेरियल इन अ कॉन्ट्रैक्ट. कल मैं चेक करूँगी ऑनलाइन सेशन में, सो डोंट फॉरगेट इट टू डू इट. So thank you so much for your precious time for watching my videos. Have a nice day. Bye bye. Take care.